میں زید کو بلاتا ہوں. غلام تھے اس وقت. حضرت زید کو بلایا گیا اور اس وقت بھری جوانی والا زید ہے. جیسی ہی آئے پہلی نظر باپ کو دیکھا, ماں کو دیکھا. ماں باپ تو چیخ پڑے, ہمارا زید مل گیا, ہمارا زید مل گیا. انہیں گفٹ کے طور پر دے دیا. حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ زید جب آئے, اس وقت ان کی عمر یعنی 10-12 سال کے آس پاس رہی ہوگی. اور یہ ایسا لڑکا جو چھوٹی سی عمر کا, ادب اتنا تھا کہ ہر ایک کا ادب کرتا, بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا. بھائی بہت روتے تھے, بہت. ماں بھی دن رات روتی, باپ بھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے, اے آسمان اگر تو نے زید کو دیکھا ہے تو میرے حوالے کر دے. ہیلو دوستو, السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو اندر دس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے. دوستو کیسے آپ لوگ, امید کرتے ہو آپ لوگ خیریت ہوں گے. دوستو میں رومیلا خان, آپ دیکھ رہے ہیں نظامی آفیشیل 786 میں آپ کا سواگت ہے. دوستو حاضر ہوں پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. دوستو سلمان اجری صاحب کی بہت ہی شاندار تقریر لے کر حاضر ہوں. دوستو آپ لوگ اس تقریر کو آخر تک ضرور سنیں. دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن پر ضرور کر لیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے. دوستو بنا ٹائم کو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ. اس قبیلے کے ایک شخص تھے حارثہ نام, ان کی بیوی سعدہ. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں. حارثہ اور سعدہ چھوٹا سا خاندان تھا, 3 بچے تھے. حارثہ کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے زید. نام یاد رکھے, بہت امپورٹنٹ نام میں ذکر کر رہا ہوں. ایک ہی نام ایسا ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے, وہ زید. یہ حارثہ کے بیٹے زید ہے, بیوی سعدہ ہے. یہ حارثہ اور سعدہ 3 بچوں کے ماں باپ تھے, ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. سعدہ ایک دن اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے جا رہی تھی. راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا, مال سب چھین لیا قافلے کا. اور اتفاق ایسا کہ یہ 8 سال کے جو زید تھے ان کو بھی ڈاکوؤں نے چھین لیا. ایک ماں سے اس کا 8 سالہ بڑا بیٹا چھین لیا جائے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی. اس قدر درد میں تھی ماں. جان تو بچ گئی, 2 بچے بھی بچ گئے, لیکن بڑا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا. مارے مارے صحراؤں میں گھومتی تھی, پکارتی تھی میرا زید, میرا زید, میرا زید, میرا زید. ڈاکوؤں نے زید کو کیا کیا, عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا اس وقت, یہ غلامی کا دور تھا, لوگ انسانوں کو پکڑتے اور بیچ دیتے تھے. وہاں لا کر کے انہوں نے زید کو بیچ دیا, غلام کی حیثیت سے بیچ دیا. آگے میں بتاتا ہوں. یہاں سعدہ کا حال بے حال تھا. واپس گھر آئی تو باپ اپنے شوہر سے کہا, اور شوہر کا حال تو ایسا تھا کہ وہ زید کو اپنے آنکھوں کا نور, اپنے آنکھوں کا سرور سمجھتا. اور اس قدر پیار و محبت والا باپ مارے مارے گھومتا رہا گلیوں میں. اور ان کا لکھا ہوا ایک اشعار کا منظوم ترانہ ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں لکھا. اپنے دشمن بھی وہ ترانہ سنتے تو رو پڑتے تھے. ایک باپ کا درد اپنے بیٹے کی جدائی, بہت روتے تھے, بہت. ماں بھی دن رات روتی, باپ بھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے, اے آسمان اگر تو نے زید کو دیکھا ہے تو میرے حوالے کر دے. زمین کے چپے کہیں اگر زید میرا زندہ ہے تو مجھے وہاں تک لے چل. یہ اشعار میں گنگناتے تھے, روتے تھے. اور زید کا کیا ہوا, عکاظ کے میلے میں بیچ دیا گیا. خریدا کون, حکیم بن حزام, جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے تھے. یہ لے کر کے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو حضرت خدیجہ کے پاس یہ زید آ گیا, بھائی نے گفٹ کے طور پر دے دیا. حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ زید جب آئے, اس وقت ان کی عمر یعنی 10-12 سال کے آس پاس رہی ہوگی. اور یہ ایسا لڑکا جو چھوٹی سی عمر کا, ادب اتنا تھا کہ ہر ایک کا ادب کرتا, بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا. ہوا کیا, ایک دن آفتاب رسالت, ماہتاب رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. دیکھا اخلاق و کردار میں کامل بچہ ہے, اور ایک ہی نظر میں بھاگ گیا. پوچھا حضرت خدیجہ سے, کہا کہ یہ غلام عکاظ کے میلے میں بیچا گیا ہے. حضور نے فرمایا یہ میرے حوالے کر دو, میرے حوالے کر دو. حضور نے جس کو پسند کر لیا ہو, حضور نے جس پر نگاہ رکھی ہو. اب وہ زید خوشی خوشی حضور کے پاس آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے بڑے خوش تھے, اور اس کے بعد محبت بھی ایسی تھی, ایسی شفقت تھی کہ زید کو نہ باپ کی خبر تھی نہ ماں کی خبر تھی. جو کچھ تھا وہ رسول اللہ کے پاس تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں دن گزرتے گئے, بڑے ہو گئے.
यहाँ तक कि 16 साल की उम्र थी। एक दिन हज के मौसम में यमन का बनु कल्ब खानदान आया हुआ था और वहां हज के दौरान वो लोग जैद के बाप हारिसा के लिखे हुए अशार पढ़ रहे थे और लोगों को रुला रहे थे। एक हमारे कबीले में बाप है जो बिछड़े हुए बच्चे की याद में रोज रोता है, उसके अशार तो सुनो। लोग सुन करके रो रहे थे, यमन का कोई ऐसा बाप है जो यूसुफ गुमगश्ता की खबर में रोया करता है। ये लोगों की भीड़ लगी थी, उसी के सामने से जैद का गुजर भी हो रहा था। बनु कल्ब के लोगों ने जैद को देखा, पहचान लिया, यही तो वो बच्चा है जिसकी याद में इसका बाप रोता है, और उसको बुलाया और कहा तेरा नाम? कहा जैद। बाप का नाम हारिसा। कहा यही तो है जिसके गम में पूरे अशार पड़े जा रहे यमन में। जैद से कहा तुझे पता है तेरे बाप का रो रो करके क्या हाल हो गया? तेरी माँ सहराओं में आवाज देती है, पहाड़ों पर चढ़ जाती है। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप की जुदाई बता देना कितनी बड़ी बात थी। हम पहुंचे और कहें उन्होंने जहां मुझे देखना था उससे बेहतर जगह में हूं। ये बनु कल्ब खानदान गया यमन, जाकर के बाप से कहा, हारिसा से और सादा से, खबर तुम्हारे लिए अच्छी लाए। तुम्हारा गुम हुआ बेटा जो पिछले 10-12 सालों से तुम्हें नहीं मिल रहा था, वो हरम काबा के पास हमें नजर आया है। गुलाम बनाकर लोगों ने बेचा है उसे, लेकिन वो एक ऐसे हसीन और जमील की गुलामी में है, एक ऐसे हुस्न वाले की गुलामी में है कि जैद वहां से हटना नहीं चाहता। बाप ने कहा मेरे कलेजे से पूछो मुझ पर गुजरती क्या है, उसकी माँ से पूछो, एक नजर देख लेगा वो वापस हमारी झोली में आ जाएगा। दौड़ते दौड़ते यमन से घंटों यानी जो महीनों का सफर था दिनों में तय करके पहुंचे। मक्का आए, जैसे ही आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढा। हुजूर पाक मिल गए तो थाड़े मार मार कर बाप रोने लगा और कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके मुतालिक सुना है कि यतीमों के वाली हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझ बाप के ऊपर रहम कीजिए, बरसों से अपने बच्चे के लिए तरस रहा है। मैं और मेरी बीवी तड़पते हैं, सहराओं में आवाज देते हैं। हुजूर ने पूछा हुआ क्या है तुम्हारे साथ? कहा हमारा बेटा गुम हो गया था, बरसों हो गए थे, लेकिन सुना है वो यहाँ रहता है। हुजूर ने पूछा क्या नाम है उसका? कहा जैद उसका नाम है, मेरा नाम हारिसा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब जैद के बारे में पूछ लिया। हुजूर जिससे खुद मोहब्बत करते हो, बाप ने पूछ लिया। हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, मैं एक बाप के कलेजे से उसके बेटे को अलग नहीं कर सकता, माँ से उसके बेटे को जुदा नहीं कर सकता, लेकिन बात इतनी है कि जैद को बुलाया जाए, फैसला उसके हाथ में है। मैं जैद को बुलाता हूँ। गुलाम थे उस वक्त, हजरत जैद को बुलाया गया और उस वक्त भरी जवानी वाला जैद है। जैसे ही आए पहली नजर बाप को देखा, माँ को देखा, माँ बाप तो चीख पड़े हमारा जैद मिल गया। लेकिन कमाल की बात मैं देखता हूं ऐसी दीवानगी पूरी दुनिया में नहीं। जैद ने देखा अपने माँ और बाप को, लेकिन उसी वक्त अपनी आंखें झुका ली और हुजूर की तरफ कर लिया। कहा ना, इधर पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हुजूर ने देखा कि जैद माँ बाप की तरफ देख नहीं रहे हो, जो रो रो करके बुरा हाल कर चुके हो। हुजूर ने जैद से कहा पहचानते हो? कहा हाँ हुजूर, ये मेरे बाप है और ये मेरी माँ है, ये मेरे चचा है। हुजूर ने फरमाया फिर मिलते क्यों नहीं हो? कहा सरकार अगर इजाजत हो तो मिलूंगा, बरसों का बिछड़ा हुआ जवान है, आप इजाजत दो तो मैं मिलूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ तुम्हें इजाजत है। जैसे ही गए, उस मंजर को जो बयान किया गया है मेरे अजीजों, हम पढ़ते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। माँ लिपट करके अपने बच्चे को हर जगह चूम रही हो, बाप सीने से लगा करके धाड़े मार कर रो रहा हो, पहले तो गश खाकर गिर गया था, फिर इफाका हुआ, ये दर्दनाक मंजर था। उसके बाद जैद बिन हारिसा को क्यों ना तकलीफ हो, गम क्यों ना हो, माँ बाप बिछड़े हुए इतने सालों के बाद देखने को मिले, दिल पर क्या बीत रही होगी। मेरी माँ वही जो मुझे खुशकियों में पाला करती, तरियों में पाला करती, मेरा बाप वही जो खून पसीने की कमाई से मुझे खिलाया था, आज आ गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जैद, ये जो जज्बाती मंजर है इसको खत्म करके अब ऐलान कर दो कि तुम्हारी माँ आई है तुम्हें यमन से लेने के लिए, तुम्हारा बाप आया है, तुम्हारा चचा आया है तुम्हें यमन से लेने के लिए, मैंने फैसला तुम्हारे हवाले कर दिया है, मैं अपने गुलामी से तुमको आजाद कर देता हूं। तुम बगैर कोई फिदिया लिए हुए, बगैर कोई पैसा लिए हुए, उस वक्त अपने गुलाम को कोई छोड़ता नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ का दर्द देखा नहीं जा रहा, मैं आजाद कर दूंगा, बगैर किसी फिदिया के तू अपनी माँ और अपने बाप के पास जा सकता है। इतना हुजूर का फरमान, आजाद कर देना मक्का में आसान नहीं था। बेटे को आजाद किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब जानते हो वो कमाल का बेटा है जैद बिन हारिसा।
उसी वक्त अपनी माँ को देखते हैं, बाप को देखते हैं, चचा को देखते हैं, और उसके बाद मक्का वाले ये मंजर देखने के लिए जमा थे। मुखातिब होकर के कहते हैं, ऐ सारे मक्का वालों, गवाह हो जाओ, मैं अपनी जिंदगी हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए वक्फ कर दिया। मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिंदगी वक्फ कर दी है। न मुझे यमन जाना है, न मुझे बनु कल्ब जाना है। माँ और बाप देखते रह गए। बाप ने पूछा, ज़ैद आजाद किया गया है और आजादी की जिंदगी को छोड़कर तू गुलामी की जिंदगी को कबूल कर रहा है? ज़ैद बिन हारिसा ने उस वक्त तारीखी जुमला कहा था, कहा, बाबा आपने जितनी शफकत की होगी, या 1000 माँ बाप मिलकर अपने बेटों पर जितनी शफकत नहीं किए होंगे, उससे ज्यादा शफकत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। मैं 1000 आजादियों पर इस एक गुलामी को, मैं 1000 आजादियों को कुर्बान करता हूं इस एक गुलामी पर। मेरे लिए जिंदगी भर ये गुलामी काफी है। इतना कहा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाहों को फैला दिया, सीने से लगाया और ज़ैद बिन हारिसा को लेकर खाने काबा के पास आए। मेरे अजीजों, उनका हाल भी ऐसा है कि अगर कोई टूट कर चाहता है तो ये नहीं है कि तू चाह रहा है, बल्कि उनका हाल ये है, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिसा को पकड़ते हैं, खाने काबा के पास ले आते हैं। हुजूम जमा था, मक्का वाले सब खड़े थे। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करके कहते हैं, ऐ मक्का वालों सुन लो, आज से ज़ैद को मैंने आजाद किया है, और सिर्फ आजाद नहीं, आज से ये मेरा वारिस है और मैं इसका वारिस हूं। ये मेरा बेटा है। हुजूर ने तन्हा एक ही सहाबी के लिए कहा, ये मेरा बेटा है। और उसके बाद ज़ैद बिन हारिसा को लोग जो मक्का में पुकारते थे, ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे। मोहम्मद का बेटा ज़ैद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटा होने का शरफ पाया है। मेरे अजीजों, ये जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार का एक बार मजा चख लिया, तो वो फिर यूं ही कहता है, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हुजूर पाक की गली में जो एक बार मजा ले ले, वो फिर दुनिया की ठोकरें नहीं खाता। इसीलिए आज तुम सबके लिए मेरे अजीजों एक ही फरमान मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सुनाकर रुखसत होता हूँ। ईमान की हलावत उसको मिलती है जो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और दूसरी चीज ये भी है, कुफ्र में जाने को ऐसा नापसंद करता हो जैसे आग में हाथ डालने को नापसंद करता है। कुफार और मुशरिकीन के मेले आज लग रहे होंगे, लेकिन तुम्हारा इम्तिहान होगा। 31st नाइट आने वाली है, ये आजमाइश की रात है। लोगों को देखा जाएगा कि तुम कौन सी अय्याशियों में जाओगे। तुम उस रात को क्या दुनियादारों को देखकर उनके पीछे भाग जाओगे? एक बात याद रखो, शेरों को जिस काम के लिए पैदा किया गया उसी काम पे रहना चाहिए। और शेर अगर अपना काम भूल जाता है तो कुत्ते उसके ऊपर लग जाते हैं। तुम्हारा काम कुत्तों की तरह भौंकना नहीं है, तुम्हारा काम शेरों की तरह दहाड़ना। मेरे अजीज, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शेर जो गटर और नाली के लिए नहीं पैदा किए गए, आला अखलाक व किरदार के लिए पैदा किए। तुम उम्मत मोहम्मदिया खैर उम्मत हो, शराब पीने के लिए नहीं, जुआ खेलने के लिए नहीं, ताश के पत्तों पर माल उड़ाने के लिए नहीं। तो दोस्तों, फाइनली सलमान अजहरी साहब की वीडियो खत्म हो चुकी है। दोस्तों, आपको तकरीर कैसी लगी आप मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।